this month we have dedicated on the basics. Okay, so we already have covered the health and life part. So what we are doing today, there were a lot of people here who are from life insurance background. Okay. Okay, so what we do is we just want to brief them about what are the kinds, what is motor insurance all about, what are the different kinds, what are the nitty-gritties. तो उसमें स्टैंड अलोन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, एंड ओडी का मतलब क्या होता है, एनी अदर, एंड व्हाट आर द एड-ऑन्स, क्या क्या हो सकता है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो इफ दे गो टू अ कस्टमर, what all they should know and what all precautions they should exercise so that the customer will get the best policy. Okay. So that is what we will cover. So it is 15 to I think 11 people are there. Another 3-4 minutes, more people will join. Sure. Preferred language would be मिक्स कर सकते हैं, हिंदी 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 इंग्लिश मिक्स. हिंदी बेहतर है. Okay. See. So I can see most of the participants appear to be from east part of India. ओडिशा से काफी लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं. Okay. Okay. Maharashtra also. Great. हाँ, महाराष्ट्र हैं. Because I have connected from Mumbai. हाँ, तो ओडिशा एंड महाराष्ट्र बेसिकली यहाँ से ज्यादा लोग होंगे. जी. So we are just expanding now. This month we will be expanding in Gujarat, Rajasthan, and East में. So because next 3 months we have a target to scale it up to pan India level. Oh, lovely. So you have very short time on hand. No, we will be able to do it. We will do it definitely. Yeah, sure. Great. So we'll try and deliver as per the expectation. And I also had word with Sujit, I believe, and he also briefed me about what exactly is anticipated. So I'll try and keep it as basic as possible so that most of the participants would understand what are the nitty-gritties of motor insurance and what are the logic behind any particular condition. Okay. And end of the session, they can confidently go and talk to the customer. And in case if any customer is interested, they can definitely book the policy also. Great. So for HDFC policies, what is the issuance process at your end? Do you use PI? For HDFC policy, we are tied up. We have API integration from both motor and health. Okay, so you have an integration on your website. So we sell through that website, and if there is some for that is for motor. For Okay. commercial, we do it through your portal. So okay. That commercial integration is underway, so it will happen by next month. Fine. Once that is done, the commercial will also can be booked on from the portal itself. And कई बार क्या होता है नवीन कि डिस्काउंटिंग वगैरह के वजह से भी, क्योंकि पोर्टल का वेट इज स्टैंडर्ड वेट, कई बार डिस्काउंटिंग वगैरह होता है तो देन आई हैव टू गो बैक टू द पोर्टल. Right. Perfect. Understood. Sir, should we start? Just wait for 1 more minute, then we can. Pradeep ji, most of the people are there.
ओके, so let's start. तो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून. आज किसी कारण से मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, तो कैमरा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो एज यू ऑल नो कि इस मंथ में हम लोग बेसिक्स पे एड्रेस कर रहे हैं, एंड आप लोग मोटर ऑलरेडी पे काम कर रहे हैं. कुछ लोगों ने अपने मोटर इंश्योरेंस ऑलरेडी बेचा भी हुआ है, बट इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई चीज बताई जाए तो एक रिवीजन, अगर आपको आता भी है तो एक रिवीजन इज ऑलवेज गुड. मे बी कि हम नई चीजें भी उसमें सीख सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो मोटर इंश्योरेंस पे है कि वी वांटेड टू कवर मोटर इंश्योरेंस. एंड क्योंकि इसमें से आप लोग में से काफी लोग ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो मोटर इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इन जनरल, वैसे तो इंश्योरेंस हमें लगता है कि सब सेम है, लेकिन काफी कुछ डिफरेंट होता है एंड थोड़ा टेक्निकल हो जाता है जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि काफी कुछ कस्टमर के हिसाब से डिजाइन भी होते हैं. प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जैसा प्रोडक्ट नहीं होता, तो उसके वजह से इसमें थोड़ा डिटेल जानना बहुत जरूरी हो जाता है. तो उसके लिए वी आर थैंकफुल कि मिलिंद इज हियर फ्रॉम HDFC एर्गो, एंड ही हैज एग्रीड कि वो आप लोग को ये सारी नॉलेज देंगे कि मोटर इंश्योरेंस में 2 व्हीलर 4 व्हीलर कॉमर्शियल क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड इसमें क्या क्या एड ऑन्स वगैरह होते हैं. तो एक डिटेल्ड डिस्कशन आज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा. तो इसके बाद आप लोग जो है अपने जब कस्टमर के पास जाएंगे तो आप बेटर इक्विप्ड होंगे उनके एडवाइस करने के लिए और उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए. क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आज का जो ट्रेनिंग है थोड़ा सा ज्यादा होगा. 1 घंटे नॉर्मली हम क्लोज करते हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा सा शायद ज्यादा समय लगेगा. सो मैं और समय नहीं लेता. आई विल इनवाइट मिलिंद. मिलिंद, थैंक्स वंस अगेन, एंड इट्स ऑल योर्स. प्लेजर. सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊं और मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करूं. मेरे हिसाब से इस ट्रेनिंग की जो कंट्रोल सिस्टम है उसके मुताबिक आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल नहीं पूछ सकते. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैट बॉक्स अवेलेबल है तो आप चैट बॉक्स द्वारा क्वेश्चन आपके पोस्ट कर सकते हैं, या एंड ऑफ द सेशन हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं जिसके दौरान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. जो भी आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से हम आपके सवालों के जवाब देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं इस सेशन की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी गाड़ियों का इंश्योरेंस निकालना जरूरी होता है भारत देश में. मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस. मैंडेटरी मैंडेटरी इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर ऑल व्हीकल्स. जी. एक जवाब ये आ रहा है कि मैंडेटरी इंश्योरेंस निकालना होगा, या एक जवाब ये आ रहा है सारी गाड़ियों के लिए. तो मेरा छोटा सा दूसरा सवाल ये है, क्या बाइसिकल या इलेक्ट्रिकल स्कूटर के लिए इंश्योरेंस जरूरी है? ऐसे MBI एक्ट में नहीं आता है जी. तो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ये है कि ऐसी कोई भी गाड़ी जिसमें इंजन या मोटर लगा हुआ है और यदि ऐसी गाड़ी पब्लिक रोड पर आने वाली है तो उस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी होता है. अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखने ही वाले हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे. मानस जी, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया माइक्रोफोन अगर आप म्यूट कर दे. तो ऐसी कोई भी गाड़ी जो पब्लिक रोड पर चलने वाली है और उसमें इंजन या मोटर फिटेड है, ऐसी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना ये जरूरी है बाय लॉ. तो भारत का जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, इस लॉ के तहत गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो
कंपलसरी होता है। अब जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो कोई तो फर्स्ट पार्टी होगा, कोई तो सेकंड पार्टी होगा। तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट पार्टी होती है वो होती है इंश्योर्ड, यानी जिन्होंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला है वो फर्स्ट पार्टी होते हैं। जिस इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी ली गई है वो सेकंड पार्टी होती है। अब ऐसी गाड़ी और इस गाड़ी की वजह से यदि किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो उनको दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन अब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी होती है जिसे हम थर्ड पार्टी पॉलिसी कहते हैं, तो इसके तहत गाड़ी के ओनर को कोई भी क्लेम नहीं मिलता। जो भी क्लेम मिलेगा वो उनकी गाड़ी की वजह से यदि किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ है या किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो सिर्फ उन्हें इस पॉलिसी के तहत क्लेम दिया जा सकता है, और इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी कवरेज। अभी ये जो थर्ड पार्टी नाम आया है ये काफी कॉमनली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेकिन इस पॉलिसी का एक्चुअल नाम जो है वो लायबिलिटी ओनली इस तरह का होता है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की पॉलिसी देती है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है। दूसरा, यदि किसी एक्सीडेंट के दौरान मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है और उस नुकसान की भरपाई अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहता हूं तो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ मैं ओन डैमेज कवर भी ले सकता हूं। तो अब मुझे दोनों सूरत में क्लेम मिल सकता है। यदि मेरी गाड़ी से किसी और को चोट पहुंचती है तो उन्हें दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, साथ साथ मेरी गाड़ी के रिपेयर का खर्चा भी अब मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जब हम थर्ड पार्टी और ओन डैमेज ये दोनों पॉलिसीज साथ में देते हैं तब इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर कहते हैं। तो अब तक हमने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड सुने हैं। एक है थर्ड पार्टी या लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, दूसरी है ओन डैमेज, और जब थर्ड पार्टी और ओन डैमेज साथ साथ दिया जाता है तब इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में और क्या क्या चीजें कवर होती है, तो उसमें हम ड्राइवर को भी पर्सनल एक्सीडेंट का कवर देते हैं। तो गाड़ी चलाने वाली जो व्यक्ति है और यदि वही खुद भी गाड़ी के ओनर है तो ऐसी व्यक्ति को 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है। यदि एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी के मालिक जो खुद ही गाड़ी चला रहे थे उनकी यदि मौत हो जाती है तो उनके घर वालों को 15 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इस मोटर पॉलिसी से दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर वो प्राइवेट कार है या बस है तो उसमें बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं तो इन पैसेंजर्स के लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जा सकता है जो इसी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी से दिया जा सकता है। अब कार इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम कोई भी कार, भारत में बिकने वाली कोई भी कार की अगर रकम देखें या उसका प्राइस देखें तो वो लाखों में होती है, और जो गाड़ियां बिकती है उनमें से 95% से ज्यादा गाड़ियां ये फंडेड होती है, मतलब कहीं ना कहीं से लोन लेके ये गाड़ियां खरीदी जाती है। तो ज्यादातर हमारे जो बंधु है वो इस कंडीशन में नहीं होते कि अगर उनके गाड़ी को लाखों का नुकसान आ जाए तो वो खुद ही उसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो इसलिए इस गाड़ी का यदि हम इंश्योरेंस करते हैं तो छोटी सी रकम में हम हमारी गाड़ी की जो आईडीवी है यानी सम इंश्योरेंस है उतनी रकम का क्लेम आप पा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, बेसिक हमने चीजें कवर करने की कोशिश की। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि कितने टाइप के मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। तो सबसे कॉमन टू व्हीलर, देन प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक गुड्स कैरिंग व्हीकल्स जिसे हम जीसीवी कहते हैं, और दूसरे होते हैं पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स यानी पीसीवी।
तो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स में ट्रक्स, टेम्पोस, टिपर्स, ये सारी चीजें कवर होंगी। और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स में ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, बसेस, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, इनकी जो सारी बसेस हैं वो हम कमर्शियल व्हीकल के अंडर पीसीवी यानी पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स के तहत बुक कर सकते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे हम कैटेगरी डी कहते हैं, और इस मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसे मिसलेनियस कहा जाता है। तो मिसलेनियस व्हीकल्स को हम सेक्शन डी में कवर करते हैं, इसलिए इसे कॉमनली हम मिस डी भी कहते हैं। तो मिस डी के तहत हम कौन सी गाड़ियां कवर करेंगे? तो ऐसी गाड़ियां जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाई गई है, जैसे एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, क्रेन्स, बुलडोजर्स, एम्बुलेंसेस। तो ये जो गाड़ियां होती है इनका उपयोग स्पेसिफिक कामों के लिए किया जाता है, और इसलिए ये गाड़ियां जो है हम मिसलेनियस डी के तहत कवर करते हैं। तो ये थी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज। आइए आगे बढ़ते हैं और कौन सी पॉलिसी में क्या चीजें कवर होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लायबिलिटी कवर में क्या आपको मिल सकता है। तो यदि बाय द वे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये पॉलिसी होना कंपलसरी हो रहा है। तो जब भी कभी हमें नाकाबंदी में ट्रैफिक पुलिस पूछती है आप इंश्योरेंस के पेपर बताएं, तो तब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि आपके पास ओन डैमेज कवर नहीं भी होगा तो पुलिस आपको फाइन नहीं करेगी, लेकिन यदि आपके पास लायबिलिटी कवर ही नहीं होगा तो पुलिस आपको फाइन कर सकती है। तो इस लायबिलिटी कवर के तहत यदि मेरी गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर लग जाए और उन्हें चोट लगे या उनकी उस एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो ये केसेस जो होती है ये एक स्पेशल कोर्ट में भेजी जाती है, और इस कोर्ट का नाम होता है MACT, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल। तो आपने देखा होगा उड़ीसा में, महाराष्ट्र में इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये पूरे भारत में होते हैं, और जो रोड रेजेस के केसेस होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं फैसले के लिए। यहाँ पर भी जजेस होते हैं। जजेस उस व्यक्ति की उम्र, उनकी एजुकेशन, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सैलरी पा रहे हैं, उनके घर में कितने डिपेंडेंट हैं, और ये सारी चीजें तथा उनके एज के हिसाब से एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर का उपयोग करके जजेस कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं। तो यदि किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो MACT कोर्ट के जो जज हैं वो कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं। अब ये कॉम्पनसेशन जितना भी हो वो इंश्योरेंस कंपनी को देना जरूरी होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि डेथ और बॉडीली इंजरी के केस में इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मैं हिंदी में दोहराना चाहूंगा, यदि किसी को आपकी गाड़ी की वजह से चोट लगती है या उनकी मौत होती है एक्सीडेंट में, तो इंश्योरेंस कंपनी को की जो जिम्मेदारी है वो अनलिमिटेड होती है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहे जितने भी रकम का हो, यदि कोर्ट ये कहता है कि आपकी गाड़ी से टक्कर लगा हुआ ये आदमी जो मर गया है इसे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो 1 करोड़ की रकम देना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं बॉडीली इंजरी और डेथ के केस में जो कंपनसेशन है वो अनलिमिटेड है। जहां तक थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का सवाल है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम TPPDB कहते हैं, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। तो छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर कोई गाड़ी सीख रहे थे और गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर चली गई और किसी शॉप में जाके उसके टक्कर लग गई और उस शॉप का फर्नीचर टूट गया, शीशे टूट गए और उसके मालिक का बहुत ज्यादा सारा नुकसान हो गया। तो ऐसे केसेस में भी
इंश्योरेंस थर्ड पार्टी पॉलिसी से उस व्यक्ति को क्लेम दिया जा सकता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज केसेस में क्लेम पे लिमिटेशन होता है। यदि वो 4 व्हीलर है या कमर्शियल व्हीकल है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा 7.5 लाख रुपए तक का क्लेम दे सकती है। यदि 2 व्हीलर की वजह से किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन दे सकती है। तो इस तरह से लायबिलिटी कवर के तहत हम 3 चीजें कवर करते हैं। एक है बॉडीली इंजरी, दूसरी है डेथ, और तीसरी है डैमेज टू थर्ड पार्टी। तो बॉडीली इंजरी और डेथ में इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी है ये अनलिमिटेड है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज में कमर्शियल और प्राइवेट कार में 7.5 लाख रुपए और 2 व्हीलर में 1 लाख रुपए। यहां तक यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, लेकिन आप आपके सवाल अभी पूछ सकते हैं। थर्ड पार्टी कवर को लेके यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल था। मेरा नाम सर्वेश्वर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि सपोज करो मेरे वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो कवर होगा। जी। अगर उसके साथ साथ मेरे को भी कुछ इंजरी होता है तो उसका कैसे जी। क्या रहेगा सर? जी, देखिए, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थर्ड पार्टी पॉलिसी की बात कर रहे थे। थर्ड पार्टी का जी। मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो गाड़ी के ओनर है, इनके अलावा अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई आ गया है। जैसे मान लीजिए जी मेरी सर। गाड़ी से किसी आदमी को टक्कर लग गई, उनको चोट आई है, जी सर। उनको गहरी चोट आई है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनके इलाज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को क्लेम देगी। तो जब मैं मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी की जी बात सर। करता हूं, तो मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी से मुझे कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला। मेरी गाड़ी की वजह से तीसरे व्यक्ति का यदि कोई नुकसान होता है तो उसी व्यक्ति को वो क्लेम दिया जा सकता है। तो जैसे आपने एक सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी की वजह से किसी और का नुकसान हुआ है, प्लस मेरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, तो वो कैसे कवर होगा? तो उसके लिए हम ओन डैमेज कवर ले सकते हैं। और कोई सवाल? हाँ, ओडी कवर में ये कवर होगा ओनर ड्राइवर प्लस जो गाड़ी का नुकसान होगा। जी हाँ, जी हाँ, वो एक अलग सेक्शन है। ओन डैमेज के नीचे, ओन डैमेज के अंदर ही एक अलग सेक्शन है जिसमें हम ओनर ड्राइवर को पर्सनल एक्सीडेंट कवर देते हैं। तो यदि जो ओनर ड्राइवर है उनको कोई चोट आई है, तो वो कवर एक्चुअली नहीं होता है, वहां पर सिर्फ डेथ के लिए एक कवर होता है 15 लाख रुपए का। वो आगे हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। सर्वेश्वर, could you get the answer? जी सर। या, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ जो कई लोगों को इंडिया में अभी तक पता नहीं है, कि जब हम थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टी में किसी भी मोटर व्हीकल को हम शामिल नहीं करते। इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए मेरी एक गाड़ी है और सुजीत की गाड़ी है, मेरी गाड़ी जब मैं रिवर्स कर रहा था तो सुजीत जी की गाड़ी पीछे पार्क थी, मैंने जाके उनके गाड़ी को टक्कर मार दी और उनके गाड़ी का नुकसान हो गया है। तो क्या अब सुजीत जी मेरी थर्ड पार्टी पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं? तो इसका जवाब होगा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में हम दूसरे मोटर व्हीकल का समावेश नहीं करते।
तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। आपके सवाल आप नोट करके रखिए और जब भी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तब आप ये सवाल पूछ सकते हैं। तो corollary to अब आते हैं, ये एक मैं जस्ट एज एन एक्सटेंशन बोलता हूँ, जस्ट फॉर श्योर श्योर श्योर, क्लैरिफिकेशन आई विल टेस्ट माय कंटेंशन। तो यही है कि वो सुजीत अपना गाड़ी का कैसे ये करेगा, भरपाई करेगा कि ही विल क्लेम इंश्योरेंस ऑफ हिज व्हीकल बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द व्हीकल, तो उसका व्हीकल का इंश्योरेंस होगा। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई थिंक he will claim कि अपना own damage का अगर लिया होगा then he can get the compensation जो जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां मोटर पॉलिसीज बेचती हैं, इनके आपस में एक करार है जिसे हम नॉक टू नॉक अग्रीमेंट कहते हैं। तो इस नॉक टू नॉक अग्रीमेंट के तहत जिस गाड़ी का इंश्योरेंस जिस कंपनी से लिया गया है, वो व्यक्ति उसी कंपनी से इंश्योरेंस का क्लेम ले सकता है, किसी और कंपनी से इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले सकते। तो जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल यूज किया था कि मेरी गाड़ी की वजह से सुजीत जी की गाड़ी को नुकसान हो गया, तो सुजीत जी की जो पॉलिसी है वो अगर कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब उनके पास टीपी प्लस ओन डैमेज दोनों है, तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके उस गाड़ी के रिपेयर का खर्चा ले सकते हैं। यदि मान लीजिए सुजीत जी ने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीदी है, तब तो उन्हें उनकी गाड़ी के रिपेयर का खर्च नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्हें ये बात पता नहीं है, और इस वजह से कई बार हम रोड पे देखते हैं कि लोग आपस में झगड़ते रहते हैं कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरी गाड़ी का क्लेम आप दिलवा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। I think it's clear. ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओन डैमेज जो पॉलिसी होती है उसमें क्या चीजें कवर होंगी। तो ओन डैमेज पॉलिसी में जिस तरह से फायर इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से मोटर इंश्योरेंस, यानी आपकी जो अपनी गाड़ी है उसे किन वजह से यदि नुकसान पहुंचता है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव या ओन डैमेज में कवर होगा। इसकी जानकारी आपको इस स्लाइड पर मिल सकती है। तो ये कुछ पेरिल्स हमने लिखे हुए हैं। मान लीजिए फायर होता है, फायर की वजह से आपकी गाड़ी झुलस जाती है, उसका पेंट जल जाता है, तो वो कवर होगा। एक्सप्लोजन, आपकी गाड़ी कहीं खड़ी थी, वहां पर कोई ब्लास्ट हो गया, उस ब्लास्ट की वजह से गाड़ी का नुकसान हुआ, तो वो कवर होगा। सेल्फ इग्निशन, मतलब अपने आप गाड़ी धू धू कर जलने लगी। लाइटनिंग, बिजली गिरने से। बर्गलरी, यानी उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स चोरी हो गए। हाउस ब्रेकिंग, मतलब गाड़ी को तोड़ के, शीशा तोड़ के या दरवाजा तोड़ के उससे अंदर से कुछ सामान चोरी किया जाता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग कहा जाएगा। और थेफ्ट, यानी पूरी की पूरी गाड़ी अगर चोरी होती है, तो इन सारी चीजों में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे सकती है। इसके साथ साथ कुछ मैनमेड कैलेमिटीज हैं, जैसे रायट्स, स्ट्राइक। तो यदि कहीं पर दंगे होते हैं, वो दंगे के दरमियान वो गाड़ियों का नुकसान किया जाता है, तो वो इसमें कवर होगा। कभी अगर हड़ताल डिक्लेयर हो गई थी और उस हड़ताल या बंद के दौरान गाड़ी का नुकसान होता है, तो वो कवर होगा। और इसके साथ साथ मैलिशियस डैमेज भी कवर होगा। मैलिशियस डैमेज का मतलब होता है बुरे इरादे से यदि कोई गाड़ी का नुकसान करता है, तो उसके ओनर को इसमें क्लेम मिल सकता है। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे अर्थक्वेक, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, स्टॉर्म, ये सारी चीजें भी हम इसमें कवर करेंगे। लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड,
ये चीजें भी, इन चीजों की वजह से भी अगर गाड़ी का नुकसान होता है तो वो हम कवर करेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटी, तो यदि टेररिस्ट आपकी गाड़ी को चुरा के उसका उपयोग करते हैं, उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, तो भी आपको इसमें से क्लेम मिल सकता है। और एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं इन ट्रांजिट। तो मान लीजिए मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, अब मेरी ट्रांसफर हो गई है देहरादून, और मैं मेरी 4 व्हीलर भुवनेश्वर से देहरादून ले जाना चाहता हूँ, लेकिन नॉट बाय रोड। तो मैंने किसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को बुलाया है, तो उनके पास स्पेशल ट्रक्स होते हैं जो गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक छोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ट्रक पर गाड़ी चढ़ाते वक्त अगर गाड़ी को कोई डैमेज होता है तो उसे हम इन ट्रांजिट में कवर करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कॉमनली ये गोवा में ज्यादा देखा जाता है कि गोवा में एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम है मांडोवी, और उस मांडोवी रिवर में कुछ बार्जेस चलते हैं। ये बार्जेस इतने बड़े हैं कि आप उस पे 10 से 15 4 व्हीलर्स खड़े कर सकते हैं, और वो आपको नदी के इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देते हैं। तो उस बार्ज पर गाड़ी चढ़ाते वक्त या उतारते वक्त अगर गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो वो भी इसमें कवर होगा, जिसे हम कहते हैं इन ट्रांजिट। आजकल मल्टी लेवल पार्किंग्स आ गई है जिसमें लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो यदि किसी गाड़ी को लिफ्ट के ऊपर प्लेस करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते वक्त अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोटर इंश्योरेंस में किन इंसिडेंट्स में क्लेम दिए जाएंगे इसका एक डेफिनेशन है। मैं चाहूंगा यदि आपके पास पेन पेंसिल रेडी है तो आप इन चीजों को नोट कर ले कि मोटर इंश्योरेंस में किस तरह के क्लेम कवर होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो डैमेज आपकी गाड़ी को हुआ है ये एक्सीडेंटल होना जरूरी है। तो अगर कोई जानबूझ के अपनी गाड़ी को नुकसान करता है या कोई स्टंट के लिए गाड़ी यूज करता है और वो स्टंट के दौरान गाड़ी को नुकसान होता है, तो ये सारी चीजें कवर नहीं होंगी। गाड़ी को जो हुआ हुआ डैमेज है वो एक्सीडेंट की वजह से होना जरूरी है। दूसरा, ये जो डैमेज है ये विजिबल होना चाहिए, कि अगर डैमेज हमें दिख ही नहीं पा रहा है तो हम रिपेयर कैसे करेंगे उसे, इसलिए वो जो डैमेज है वो विजिबल होना जरूरी है। तीसरा, ये जो डैमेज है ये वायलेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई गाड़ी का नुकसान हो गया है कि वो 100-200 रुपए में वो ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में आप जब भी क्लेम करते हैं तो वहां पर एक कंपल्सरी डिडक्टिबल रकम होती है। तो जो गाड़ियों की सीसी कैपेसिटी 1500 सीसी से कम है उनको पर क्लेम में -1000 रुपीज किया जाता है, और जिनका सीसी कैपेसिटी 1500 से ज्यादा है उनको हर क्लेम में 2000 रुपए माइनस किए जाते हैं। तो यदि आप 200 या 300 रुपए के रिपेयर के लिए वहां पर चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, ऊपर से आपको 700 रुपए कंपनी को देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो डैमेज है ये वायलेंट होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डैमेज है ये एक्सटर्नल मींस की वजह से होना जरूरी है, यानी बाहरी ताकतों की वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान यदि होता है तो ही वो कवर किया जाएगा। इसका उदाहरण आपको देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बॉम्ब रख के लेके जा रहे थे और वो बॉम्ब गाड़ी के अंदर फट गया तो उसमें गाड़ी का भी नुकसान होगा। तो इस तरह से अगर गाड़ी के अंदर से उसका नुकसान शुरू होता है, जैसे बॉम्ब गाड़ी के अंदर फटा था, तो वो क्लेम कवर नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी में जो डैमेज हुआ है वो गाड़ी के अंदर से शुरू हुआ है। तो ये डेफिनेशन आप जरूर ध्यान में रखें कि मोटर इंश्योरेंस में किस तरह के क्लेम हम कवर करेंगे। तो वो है एक्सीडेंटल, विजिबल, वायलेंट एंड बाय एक्सटर्नल मींस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ साथ लास्ट मोटर लास्ट वीक इंश्योरेंस जो पॉलिसी में
लास्ट जो एक लिखा गया है, सॉरी, प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कॉस्ट, ये जी मैं उसी पे आ रहा था। तो इन सारी चीजों के अलावा हम कस्टमर से एक पर्टिकुलर प्रीमियम लेते हैं जो होता है प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कॉस्ट के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा जो हाईवेज होते हैं वो थोड़े से ऊंचाई पे होते हैं और हाईवे के अगल बगल में गटर्स बने होते हैं। खास करके जो नेशनल हाईवेज है तो वो ऊंचाई पे होते हैं ताकि बारिश में उनमें पानी ना भरे। तो कई बार एक्सीडेंट होने पर गाड़ियां जो है वो नीचे उतर जाती है, चाहे वो 10 या 15 फीट का नाला हो या 20-25 फीट की खाई हो या 200 फीट की खाई हो। तो यदि गाड़ी उनके उस खाई में गिर जाती है तो सबसे पहले हमें उस गाड़ी को उस खाई से निकालना बड़ा जरूरी हो जाता है। और यदि वो कोई कार है तो उसका वजन कम से कम 1 टन तो होगा ही, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वहां पर क्रेन्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से कस्टमर से प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कॉस्ट लिया जाता है ताकि गाड़ी यदि डिच में गिर जाए तो उसे निकालने का जो खर्च है वो अब कवर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं किन टाइप की पॉलिसीज है। तो हमने सबसे पहले देखा लाइबिलिटी पॉलिसी है। फिर जब मैं लाइबिलिटी के साथ साथ ओन डैमेज भी लेता हूं तो उसे हम पैकेज पॉलिसी कहेंगे। ज्यादातर जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज पहले बेची जाती थी वो 1-1 साल की बेची जाती थी, लेकिन 2018 में हाई कोर्ट ने एक नया निर्णय दिया था जिसके बाद अब गाड़ियों को, जो नई गाड़ियां खरीदी गई है, उन्हें मल्टीपल ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदना जरूरी हो जाता है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं 2018 सितंबर 1 इस दिन से हाई कोर्ट ने ये आदेश लागू किया था कि उस दिन के बाद कोई भी नई गाड़ी यदि खरीदी जाती है, अगर वो प्राइवेट कार है यानी 4 व्हीलर है, तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपल्सरीली 3 साल का निकालना होगा। और यदि वो 2 व्हीलर है तो कंपल्सरीली 5 साल का इंश्योरेंस निकालना जरूरी होगा। तो सबसे पहले यदि कोई सिर्फ लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी ले रहे हैं तो वो पॉसिबल है एचडीएफसी आर्गो में। दूसरा, हम देते हैं बंडल्ड पॉलिसी। तो कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए थर्ड पार्टी खरीद सकते हैं, लेकिन उनके जो गाड़ी का ओन डैमेज कवर है जिसका प्रीमियम नॉर्मली थोड़ा हाई होता है, तो उसकी कवरेज वो 1 साल के लिए ले सकते हैं। तो 3 साल का टीपी और 1 साल का ओडी अगर कस्टमर लेते हैं तो इस तरह की पॉलिसीज को हम बंडल्ड पॉलिसी कहते हैं। पिछले 2 सालों में इंश्योरेंस कंपनियां ये ऑप्शन भी देती थी कि जितने साल का टीपी है उतने साल का ओडी भी कस्टमर खरीद सकते थे, लेकिन पिछले साल अगस्त में आईआरडीए ने नए रूल के तहत इसे हटा दिया है कि अब ये जरूरी नहीं है कि 3 साल के साथ 3 साल का ही इंश्योरेंस देना जरूरी नहीं है। कस्टमर 1 साल की बंडल पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी थर्ड पार्टी पॉलिसी है क्या वो कैंसिल की जा सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार यदि कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार पे खरीद लेते हैं तो उस पॉलिसी को सिर्फ 3 कंडीशन के तहत कैंसिल किया जा सकता है। तो पहला रीजन है डबल इंश्योरेंस, कि मान लीजिए गलती से आपने आपकी एक गाड़ी पे 2 थर्ड पार्टी कवरेजेस ले लिए गलती से, तो वहां पर आप दोनों में से एक पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है, यानी गाड़ी पूरी तरह चोरी हो गई, या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता है, यानी गाड़ी के इंश्योरेंस की रकम के कंपैरिजन में गाड़ी को रिपेयर करने का खर्चा अगर 75% से ज्यादा है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहते हैं। तो इन 2 केसेस में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो। और तीसरा जो है
वो रीजन ये है कि यदि आपने गाड़ी बेच दी है, अब वो गाड़ी किसी और की हो गई है, तो ऐसे वक्त आप आपके जो थर्ड पार्टी के बचे हुए दिन है उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड पर आपको बताया था कि 1 सितंबर 2018 से ये मल्टीपल ईयर थर्ड पार्टी कंपलसरी कर दिया गया था। उसी तरह से 2 महीने के समय में ही कोर्ट ने और एक निर्देश दिया था, वो ये था कि जिन्होंने गाड़ी खरीदी है और यदि वो खुद ही गाड़ी चलाने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी होगा। तो इसे हम कहते हैं CPA कवर, कैपिटल पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये जो कवर है ये सिर्फ और सिर्फ ओनर ड्राइवर को दिया जा सकता है। मान लीजिए यदि कोई गाड़ी किसी कंपनी के नाम पे बुक्ड है और वो कंपनी ने वो गाड़ी उनके किसी ऑफिसर को यूज करने के लिए दी है, तो उन ऑफिसर को 15 लाख का इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, यदि हम कॉमन एग्जांपल ले तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी जो है वो वाइफ के नाम पर भी खरीदी जाती है। तो मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी है और मेरे वाइफ के नाम पर खरीदी है, लेकिन ना उनके पास लाइसेंस है ना उनका कोई गाड़ी चलाने का इरादा है। तो यदि वो ओनर ड्राइवर होती तो उन्हें 15 लाख का कवर दिया जा सकता था, लेकिन वो जब गाड़ी चलाने वाली ही नहीं है तो उनको वो 15 लाख का कवर देके कोई मतलब नहीं है। तो प्रपोजल फॉर्म में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ओनर ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है। अगर वो है तो 15 लाख रुपए का कवरेज उन्हें दे दिया जाएगा। अगर वो उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो ये 15 लाख का कवर उन्हें नहीं दिया जाएगा। So this is not mandatory in one way, na? If this is the case, दिस इज वन वे, दिस इज मैंडेटरी। अगर आप ओनर ड्राइवर है तो आपको ये 15 लाख का कवर लेना जरूरी होगा, लेकिन but anybody has the scope to tell that I am not the owner driver. नहीं नहीं, जैसे आप इसमें बोले क्या कि होता है कि मान लीजिए wife किसी के पास, हाँ हाँ, तो उस केस में क्या होगा कि जो ओनर है वो वाइफ है। अगर हम सही डिक्लेरेशन ना दे तो वो 15 लाख का कवर उनको दे दिया जाएगा, जबकि वो कभी गाड़ी चलाने वाली है ही नहीं, तो वो अच्छा, उस that कवर means, का कोई मतलब नहीं बचता। अच्छा, that means it is mandatory. अच्छा, ठीक है। हाँ, इट इज मैंडेटरी, बट किस तरह से वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि Yeah, there मान is a twist लीजिए to it. मान लीजिए मान लीजिए किसी के पास 3 गाड़ियां हैं और तीनों गाड़ियों के ओनर ड्राइवर वो खुद ही है। तो अब क्या होगा कि उन्हें हर गाड़ी में 15-15 लाख का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो वो कंपलसरी नहीं है। उनके पास टोटल 15 लाख का, कम से कम 15 लाख का इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो यदि किसी कस्टमर ने अपनी पहली गाड़ी पर 15 लाख का कवर ले लिया है CPA का, तो वो अपनी दूसरी और तीसरी गाड़ी की पॉलिसी में इस 15 लाख का एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो उन्हें 2-2 या 3-3 PA कवर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आई थिंक अब ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि यदि कोई कस्टमर अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही वो CPA कवर लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, लेकिन HDFC अर्गो स्टैंड अलोन CPA कवर भी देती है। तो मान लीजिए किसी कस्टमर के पास मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है, लेकिन वो सिर्फ CPA कवर लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें स्टैंड अलोन ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दे सकते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं इसके प्रीमियम क्या होंगे। तो अगर आप प्राइवेट कार के लिए ले रहे हैं और 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 15 लाख के इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आएगा वो 325 रुपए आएगा।
यदि आप 3 साल के लिए एक साथ ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम आएगा 900 रुपए। यदि आप 2 व्हीलर के लिए खरीद रहे हैं 15 लाख का कवर, तो उसका 1 साल का प्रीमियम जो है वो आएगा 375 रुपए, और अगर 5 साल का लेना चाहते हैं तो 1650 रुपए। कमर्शियल व्हीकल्स में ये जो कवर है ये सिर्फ 1 साल के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि हर साल उस गाड़ी को पासिंग करवाना जरूरी होता है, तो हर नए साल वो नया कवरेज उसमें ऐड करके ले सकते हैं। तो ये था कवरेज ओनर ड्राइवर के लिए। अब आइए देखते हैं कि जो पैसेंजर्स है उनके लिए क्या कवर उपलब्ध किया जा सकता है। तो इस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में यदि हम कार की बात करें तो कार के आरसी बुक में उसका एक ऑफिशियल सिटिंग कैपेसिटी लिखा होता है। तो ज्यादातर जो कार्स होती है वो 1+4 कैपेसिटी की होती है। तो उसमें एक ओनर ड्राइवर होंगे और बाकी 4 पैसेंजर्स होंगे। तो ये जो पैसेंजर्स बैठने वाले हैं गाड़ी में, एक्सीडेंट के दरमियान इनके भी मौत होने का चांसेस बना रहता है, तो इनके लिए भी हम इंश्योरेंस पीए कवर ले सकते हैं। कम से कम 10,000 रुपए पर पैसेंजर या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए पर पैसेंजर। सो कम से कम 10,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का कवर पैसेंजर्स के लिए लिया जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं इसके रेट क्या होंगे। तो अगर 2 व्हीलर में आप पिलियन के लिए पॉलिसी निकाल रहे हो या पीए कवर ले रहे हो, तो वो अगर आप 1 लाख रुपए का लेते हैं तो उसका प्रीमियम आएगा 70 रुपए। मतलब प्रति 10,000 रुपए के इंश्योरेंस कवर के लिए 2 व्हीलर में 7 रुपए का रेट लगता है। यदि आप 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं तो उसमें पर 10,000 कवर के लिए 5,000 रुपए, माफ कीजिए 5 रुपए प्रीमियम आता है। तो 1 लाख रुपए के लिए 50 रुपए प्रीमियम आएगा और 2 लाख के लिए 100 रुपए प्रीमियम आएगा पर पैसेंजर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उनमें ये जो प्रीमियम रेट है ये 6 रुपए प्रति 10,000 कवर के लिए होता है। तो ये 1 लाख की पॉलिसी अगर निकालेंगे तो 60 रुपया प्रीमियम आएगा। तो इस तरह से आप पैसेंजर कवर भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ कवरेज हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने पहले बात कर ली थी कि डेथ बॉडीली इंजरी कवर होगा, डैमेज टू थर्ड पार्टी कवर होगा, जो प्राइवेट कार और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की जो लिमिटेशन है कंपनी की वो 7.5 लाख रुपए तक की है और 2 व्हीलर में 1 लाख रुपए तक की है। इन सारे कवरेजेस के अलावा आप लीगल लायबिलिटी कवर भी ले सकते हैं। तो यदि आप पेड ड्राइवर रखते हैं, मतलब आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपने पैसे दे के किसी को रखा हुआ है, तो उसे हम पेड ड्राइवर कहेंगे। और उस पेड ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का। साथ साथ आप उनके लिए एक लीगल लायबिलिटी कवर भी ले सकते हैं। तो यदि आपकी गाड़ी चलाते वक्त उनके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी आती है तो इस पॉलिसी की वजह से उस लीगल लायबिलिटी का खर्च इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो इसमें आप किसी शामिल कर सकते हैं। तो पेड ड्राइवर है, क्लीनर है, कंडक्टर है, एम्प्लॉइज जो आपकी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। कई सारी कंपनियां वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट अपने एम्प्लॉइज को ले जाने के लिए बसेस का उपयोग करते हैं, तो उसमें बैठने वाले सारे एम्प्लॉइज के लिए आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं। जो लोग इस कमर्शियल व्हीकल के ऑपरेशंस के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मेंटेनेंस है या लोडिंग ऑफलोडिंग है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये पीए कवर दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर ले सकते हैं या कंडक्टर या क्लीनर। This is unnamed. जी कहिए। And these covers can be taken unnamed, without name. Yes, they can be taken unnamed. और इसी तरह से जो पैसेंजर कवर्स होते हैं वो भी आप अननेम्ड ले सकते हैं
वहां पर ऑप्शन होता है, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं वहां पे तो नाम लिख सकते हैं पैसेंजर का। लेकिन यदि एक्सीडेंट में उसी पैसेंजर की कोई मौत होती है, ओनली ओनली तब उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो 99.99% ऑफ द टाइम लोग अननेम्ड पैसेंजर कवर लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी गाड़ी में कौन से दिन कौन से वक्त कौन बैठा हो सकता है। इसलिए ये ज्यादातर कवर जो है वो अननेम्ड दिए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन सी चीजें हम कवर नहीं करते। सो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, मतलब जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर छोटा सा डैमेज है तो उसे तभी रिपेयर कर लिया तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आगे चलकर ये डैमेज धीरे धीरे बढ़ सकता है और बाद में आने वाला खर्च उससे ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से कॉन्सिक्वेंशियल की वजह से अगर आपकी गाड़ी का डैमेज बढ़ते जा रहा है तो ऐसे क्लेम को हम कवर नहीं करते। दूसरा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है खिसारा, या जैसे गाड़ी जब मैं नई नई खरीदता हूँ तो उसकी एक एक्स वैल्यू होती है, लेकिन जैसे वो गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाए तो उसकी वैल्यू घट जाती है, 2 साल के बाद और थोड़ी घटती है, 3 साल के बाद और घटती है। तो ये जो प्राइस में कमी आ रही है उस गाड़ी के, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यदि आपने पिछले साल 10 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, तो पिछले साल आपने शायद 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया होगा, लेकिन इस साल जो गाड़ी का दूसरा साल है, उस साल आपके गाड़ी की जो सम इंश्योरेंस है वो उसके एक्स शोरूम प्राइस के 80% तक ही दी जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी का 20% डेप्रिसिएशन हो चुका है। इसके बाद हम वेयर एंड टेयर को कवर नहीं करते। यूसेज की वजह से जो डैमेज या घिसाई होती है गाड़ी की, उसे कवर नहीं करेंगे। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स को हम कवर नहीं करते। उसी तरह फेलियर्स और ब्रेकेजेस को कवर नहीं करते। यदि टायर को यदि कोई डैमेज होता है तो टायर का डैमेज हम कवर नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंट के दरमियान अगर गाड़ी के टायर को डैमेज होता है तो उस नए टायर की कीमत की 50% तक रकम ही हम उसे देते हैं। डेलिबरेटली किया हुए एक्सीडेंट या डेलिबरेटली किया हुआ डैमेज हम कवर नहीं करेंगे। इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर, यदि किसी गाड़ी के ड्राइवर नशे की हालत में यदि गाड़ी चला रहे थे और उस नशे की हालत में एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में क्लेम नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ जनरल एक्सक्लूजन्स होती है, जैसे इसमें एक न्यूक्लियर वॉर, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कॉन्टैमिनेशन। इसमें एक जी क्लैरिफिकेशन जी चाहिए। इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर को क्लेम नहीं दिया जाएगा इन द सेंस कि उसका पर्सनल जो क्लेम है एक्सीडेंटल का उसके लाइफ में जो दिया होगा जी वो नहीं, नहीं मिलेगा। जी नहीं, जी नहीं। अदरवाइज देखिए, थर्ड पार्टी तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उस आदमी ने किसी दूसरे गाड़ी को जाके टक्कर मारी है तो उस केस में वो क्लेम प्रॉपर्टी नहीं दिया जा सकता। नहीं, वो प्रॉपर्टी डैमेज किया है इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। तो मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके गाड़ी का ओन डैमेज, आपके गाड़ी का ओन डैमेज भी नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा भी ना होता ना है कि ना 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 ड्राइवर my अगर question is इंटॉक्सिकेटेड। slightly different. Driver is intoxicated but he is causing damage to the property of some other body, किसका घर में घुसा दिया गाड़ी, all that. So whether that property will be indemnified because वो तो थर्ड third पार्टी, party, right? थर्ड पार्टी क्लेम मिलेंगे, थर्ड पार्टी क्लेम दिए जा सकते हैं। ओन डैमेज क्लेम हम कवर नहीं करेंगे। और कई Right. बार थर्ड पार्टी क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है। So that is actually debatable, like the legal point of view. वो सर्कमस्टेंशियल, वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कि कितनी दारू पी थी, किस तरह गाड़ी चला रहे थे, एंड ऑल दैट। उसके बेसिस पर ही ये क्लेम सेटल होगा।
इसके बाद पॉलिसी कंडीशंस टू बी फॉलोड। जब हम इंडिया में मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी देते हैं तो उसका जुरिस्डिक्शन जो होता है वो इंडिया ओनली होता है, और ऐसी गाड़ी यदि कोई इंडिया के एडजेसेंट कंट्री में ले जाए, माफ कीजिए किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया आप म्यूट कर दीजिए माइक को। थैंक यू। तो यदि कोई अपनी गाड़ी लेके नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इस तरह के क्लेम कवर नहीं होंगे। इंडिया के अंदर दिए गए पॉलिसी में इंडिया के अंदर ही अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो उसका कवरेज मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ जनरल एक्सक्लूजन्स है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन, इन्वेजन ऑफ फॉरेन कंट्री, न्यूक्लियर वॉर, रेडियो एक्टिविटी, कंटामिनेशन, इन सब चीजों में क्लेम नहीं दिया जा सकता। तो ये था मोटर इंश्योरेंस बेसिक नॉलेज। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी उठाकर देख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही कवरेजेस मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, फार्मास्यूटिकल में एक होता है जेनेरिक प्रोडक्ट, कि उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है लेकिन उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली दूसरी कंपनी के जैसा ही है, या कोई भी कंपनी जब वो दवा बनाती है तो वो एग्जैक्टली सेम होती है, तो ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं जेनेरिक दवाइयां। उसी तरह मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं और उनकी जो नॉलेज है वो इस पॉइंट तक जेनेरिक है। किसी भी कंपनी में आप जाइए, मैंने अभी आपको जो भी जानकारी दी है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई होती है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यदि मैं HDFC अर्गो कंपनी की पॉलिसी बेच रहा हूं तो कस्टमर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा अच्छी है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो गाड़ियों के एड ऑन से डिसाइड किया जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि HDFC अर्गो की पॉलिसी में कौन से एड ऑन कवर्स हम देते हैं और इन एड ऑन कवर से कस्टमर को क्या फायदा हो सकता है। तो इस एड ऑन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा। आई वांट टू जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कृपया आप बने रहें, हम 2 मिनट में वापस जुड़ेंगे। All of you know Aadhaar coverage is basically as good as rider जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लेते हैं, तो वही है। बट इसमें the benefit will be different, the name will be different, like we will give this which is as you rightly told, ये differentiator रहेगा decision making का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।
तो एड ऑन कवर की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि जो बेसिक मोटर इंश्योरेंस के नॉलेज अब तक हमने शेयर किए आपके साथ, उसके रिलेटेड आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। सर मैं मेरा ये सवाल ये है कि सर अगर गाड़ी किसी का पुराना 5 इयर्स हो चुका है तो उनका आईडीबी वैल्यू अपना हिसाब से ले सकता है या नहीं सर? जैसे कि 4th ईयर का आईडीबी वैल्यू सोचिए 2 लाख का था पुराना कार का। जी जी सुजीत जी, मैं आपको एक टेबल के बारे में बताता हूँ। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक स्टैंडर्ड टेबल यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन टेबल, और ये डेप्रिसिएशन टेबल गाड़ी की कीमत को लेके यूज किया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसे मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करूं। क्या आप लोग एक वर्ड डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं? You can see it. Yeah, we can see it visually. तो यहाँ पर जो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन टेबल कहा जाता है, और जिसका नाम दिया है हमने शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फिक्सिंग आईडीवी। कृपया आप म्यूट कीजिए, कृपया आप म्यूट कीजिए। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो नई गाड़ी होती है जो शोरूम में खड़ी है, वो गाड़ी जब भी कोई व्यक्ति खरीदते हैं और उस पे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसमें इमीडिएट 5% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मान लीजिए किसी गाड़ी की एक शोरूम वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है और उन्होंने वो गाड़ी खरीदी, लेकिन इस टेबल के हिसाब से उसमें इमीडिएटली 5% डेप्रिसिएशन लागू होता है और उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वो 9.5 लाख रुपए का दिया जाता है। गाड़ी के 1 साल पूरे होने के बाद दूसरे साल में जब गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाएगा तब उसमें 20% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तीसरे साल में 30%, चौथे साल में 40%, 5वें साल और उसके बाद हर साल उनके एक शोरूम प्राइस के 50% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो ये जो टेबल है ये पूरी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड तौर पे यूज किया जाता है। यदि विमल जी मुझे उनका ईमेल एड्रेस दे देंगे तो मैं उन्हें ये डॉक्यूमेंट मेल कर सकता हूं ताकि वो आप सभी को ये सर्कुलेट कर सकते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। Me as well. You have my mail ID, right? Dishawana. Yes. Mail it to me. Not actually. If you can write it in a chat box or you can just tell me. Surely, Um, I'll do that. I'll do that. Milind, Piyush will take it from you and he will circulate. ओके ओके। आई होप आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं फिर से एक बार। मोटर Yes. इंश्योरेंस Yes. एड ऑन कवर्स। तो आइए देखते हैं कि जो बेसिक मोटर पॉलिसी अगर कोई खरीदता है तो वहां पर क्लेम्स किस तरह से कवर होते हैं और जो बाकी रकम है
वो कस्टमर अगर कवर करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा एड ऑन लेना जरूरी होगा और उस एड ऑन के तहत वो किस तरह से कवरेज दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं एड ऑन कवर्स। और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये आपको स्पेसिफिकली एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस कंपनी के एड ऑन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो हम देते हैं रिटर्न टू इनवॉइस कवर, कंज्यूमेबल कवर, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, इमरजेंसी असिस्टेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस वाइडर कवर, इसमें हम गाड़ी की चाबी का इंश्योरेंस करते हैं, एनसीबी प्रोटेक्टर, इंजन एंड गियरबॉक्स कवर, और जो आखिरी एड ऑन कवर है उसका नाम है लॉन्ग टर्म टू व्हीलर। तो ये टू व्हीलर के रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि एड ऑन कवर्स आपको किस तरह मदद करते हैं। तो मान लीजिए कि सिनेरियो 1 है जहां पे नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है कस्टमर की। इंश्योरेंस का क्लेम जो आया है, डैमेज जो हुआ है गाड़ी का, वो 5 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता है मेटल पार्ट्स पे, प्लास्टिक पे, लेबर पे, और इन सारी वजहों से कस्टमर का जो 5 लाख का क्लेम है उसमें से 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, लेकिन उसके ऊपर के जो 1 लाख रुपए है वो कस्टमर को खुद को खर्च करने होते हैं। ये सिनेरियो तब होता है जब कस्टमर ने सिर्फ बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, उसमें कोई एड ऑन्स नहीं लिए हैं। दूसरा एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने बेसिक पॉलिसी के साथ साथ एड ऑन कवर्स भी लिए हैं। तो एड ऑन कवर्स लेने के बाद अब कस्टमर का क्लेम किस तरह सेटल होगा? तो कंपनी किसी भी प्रकार के डेप्रिसिएशन उन्हें नहीं लगाएगी और 4,99,000 का क्लेम उनका कवर होगा और 1,000 रुपए सिर्फ कस्टमर को देने होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 1,000 रुपए कस्टमर को क्यों देने होंगे? इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। क्या आप में से किसी को याद है कि 1,000 रुपए क्यों देने पड़ेंगे कस्टमर को? हाँ, वो कुछ कंपल्सरी डिडक्ट करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। गाड़ी की जो सीसी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक एक कंपल्सरी डिडक्टेबल होता है जो उस क्लेम की रकम से माइनस किया जाता है, और इस वजह से इस केस में 1,000 रुपीज जो है वो माइनस किए गए थे। तो आइए देखते हैं कि जो एड ऑन कवर्स है, इन सारे एड ऑन कवर्स में जो सबसे पॉपुलर है उस कवर का नाम है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर। इसे निल डेप भी कहते हैं, NIL डेप, DEP, निल डेप, और मार्केट में ये बम्पर टू बम्पर कवर नाम से भी मशहूर है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो मान लीजिए मेरी गाड़ी का यदि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है और उसमें मेरी गाड़ी की कुछ चीजें खराब होती है। अब मेरी गाड़ी हो सकती है 3 साल पुरानी, लेकिन जब गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं तब वहां पर नए पार्ट्स बिठाए जाते हैं। तो पुरानी गाड़ी में नए पार्ट्स बिठाए जा रहे हैं तो कस्टमर को तो नया पार्ट मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज वो पार्ट कौन सी चीज का बना हुआ है इसके बेसिस पर उस पार्ट पर डेप्रिसिएशन लगाती है। जैसे रबर, नायलॉन, प्लास्टिक, टायर, ट्यूब, बैटरी, एयरबैग्स, इन चीजों पर 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी अगर किसी गाड़ी की बैटरी एक्सीडेंट के दौरान खराब होती है, आई एम सॉरी, मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी गाड़ी के एयरबैग्स फट जाते हैं एक्सीडेंट के दौरान, तो नए एयरबैग की जो भी कीमत होगी उसके 50% रकम इंश्योरेंस कंपनी देगी, 50% कस्टमर को देने होंगे। तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन लगते हैं, और इस वजह से जैसे हम पिछले सिनेरियो में देखा था कि टोटल क्लेम 5 लाख रुपए का 4 लाख रुपए सिर्फ कंपनी दे रही है, 1 लाख कस्टमर को देना पड़ रहा है। अब आइए देखते हैं कि अगर कस्टमर जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा
कि ये जो 50%, 30% और मेटल के केस में 25% डिप्रिसिएशन लगने वाला था, वो अब 0 हो जाएगा। यानी कस्टमर को किसी भी प्रकार का डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक हमने छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लाया है। मेरी गाड़ी की एक शोरूम कीमत जो है वो 8 लाख रुपए की है। गाड़ी जो है 3 साल पुरानी है, इस वजह से उस गाड़ी में 40% का डिप्रिसिएशन लगा है और गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो 5,60,000 का है। इस गाड़ी में एक पार्शियल लॉस आया है जिसका टोटल खर्चा 1,70,000 आने वाला है, जिसमें रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स है 40,000 रुपए के और मेटल के पार्ट्स है 1,30,000 रुपए के। तो अब अगर कस्टमर के पास एड ऑन कवर नहीं होता, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन नहीं होता, तो क्लेम किस तरह सेटल होता? तो रबर प्लास्टिक पर 50% डिप्रिसिएशन है, तो 40,000 के बजाय कंपनी 20,000 रुपए देगी। मेटल में 25% डिप्रिसिएशन लगता है, तो 1,30,000 के बजाय 97,500 देगी। 500 रुपए कंपल्सरी डिडक्टिबल कटेगा। तो इस वजह से कंपनी जो है वो 1,70,000 में 1,17,000 का क्लेम कस्टमर को देगी। ऊपर के 53,000 रुपीज कस्टमर को खुद ही खर्च करने पड़ेंगे। यदि इसी गाड़ी में कस्टमर ने जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लिया होता, तो अब उन्हें रबर, प्लास्टिक, मेटल पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इसका मतलब है 40,000 रुपए पूरी तरह कंपनी कवर करेगी, 1,30,000 भी पूरी तरह कंपनी कवर करेगी, कटेगा सिर्फ कंपल्सरी डिडक्टिबल। तो इस केस में कस्टमर को 1,69,500 रुपए का क्लेम मिल सकता है। तो इस तरह से ये जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर काम करता है। ये जो कवर होता है ये गाड़ी के पर्टिकुलर एज तक ही दिया जा सकता है। तो कोई कस्टमर अगर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी के पहले 5 सालों तक ये कवर दिया जा सकता है। या अगर किसी ने गाड़ी 2 साल पहले खरीदी थी, तब उन्होंने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, अब वो लेना चाहते हैं, तो वहां पर गाड़ी का पहले इंस्पेक्शन होगा और आने वाले 3 सालों तक, यानी गाड़ी की उम्र जब तक 5 साल की नहीं पूरी हो जाती, तब तक के लिए ये जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर दिया जा सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हालांकि जीरो डेप्रिसिएशन कवर इंश्योरेंस कंपनियां देती थी, लेकिन इस जीरो डेप्रिसिएशन कवर के तहत सिर्फ 2 ही क्लेम प्रोसेस होते थे 1 साल के अंदर। यानी यदि कस्टमर का तीसरा क्लेम आएगा उसी साल में, तो कंपनी बेसिक पॉलिसी के हिसाब से ही तीसरा क्लेम सेटल करती थी। लेकिन HDFC अर्गो पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने जीरो डेप्रिसिएशन के तहत अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लेम्स को कवर करना शुरू कर दिया है। तो HDFC का एडवांटेज क्या है? तो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लेम्स कवर करते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करके रखें। इसके बाद वाला जो एड ऑन है बड़ा सिंपल है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल। जब भी गाड़ी गैराज में रिपेयर के लिए जाती है, तब छोटे मोटे आइटम जैसे नट, बोल्ट, पैकिंग, वॉशर्स, ग्रीस, फास्टनर्स, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ग्रीस, बेयरिंग्स, इन चीजों के पैसे इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। यदि आप इन पैसों का भी भुगतान चाहते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल एड ऑन ले सकते हैं। अब आपकी गाड़ी के सारे खर्चे इसमें कवर किए जाएंगे। इसके बाद वाला जो कवर है वो है इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्टर। तो यदि आपके गाड़ी की कोई एक्सीडेंट होती है और उस एक्सीडेंट के दौरान इंजन को डैमेज होता है, तो वो आपकी बेसिक पॉलिसी में कवर कर दिया जाता है। लेकिन 2 ऐसे डैमेजेस हैं जो बेसिक पॉलिसी में कवर नहीं किए जाते। पहला है, यदि इंजन के अंदर पानी चले जाए, तो यदि आपके सिटी में वाटर लॉगिंग होती है और गाड़ियां पानी में फंस जाती है और ऐसे वक्त अगर पानी इंजन तक चले जाए और वो व्यक्ति अनजाने में वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करे,
तो इंजन में पानी होने की वजह से इंजन लॉक हो जाता है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉक, और इसके रिपेयर के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, यदि आपके इंजन से इंजन ऑयल लीक हो रहा था और आपको वो ध्यान में नहीं आया और आप उसी तरह गाड़ी चलाते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि गाड़ी के इंजन से पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाएगा और फ्रिक्शन की वजह से आपके पिस्टन ब्रेक हो सकते हैं या इंजन का हाउसिंग खराब हो सकता है। तो ये दो क्लेम जो है ये नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होते। यदि आप इन चीजों के खिलाफ प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप अपने पॉलिसी में इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्टर जरूर ले सकते हैं। ये जो इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्टर एड ऑन कवर है ये जीरो डेप की तरह पहले 5 सालों तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टर है वो है नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर। तो आइए देखते हैं। आप सभी को पता है कि यदि इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीवियस ईयर कोई क्लेम नहीं आता है तो अगले साल कंपनी कस्टमर को कुछ नो क्लेम बोनसेस देती है, और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन बोनसेस का जो टेबल है वो फिक्स्ड है। तो यदि पहले साल में कस्टमर की पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं आता है तो उन्हें दूसरे साल के पॉलिसी में 20% नो क्लेम बोनस दिया जाता है। उसके बाद वाले साल में 25%, फिर 35%, फिर 45%, और उसके बाद आने वाले हर साल के लिए 50% डिस्काउंट दिया जा सकता है। और जहां तक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्काउंट का सवाल है तो ये जो डिस्काउंटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ओन डैमेज प्रीमियम में दी जा सकती है, क्योंकि गाड़ी के थर्ड पार्टी प्रीमियम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं, उसमें हम कोई भी कमी नहीं कर सकते। तो यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी पार्क्ड कंडीशन में खड़ी थी और रात में बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से पानी भर गया और आपके गाड़ी को नुकसान हुआ, या आपकी गाड़ी पार्क्ड कंडीशन में खड़ी थी उसके ऊपर आके एक पेड़ गिर गया जिससे आपके गाड़ी को डैमेज हुआ, तो आप तो क्लेम करेंगे ही। लेकिन आपकी गाड़ी का जब डैमेज हुआ तब गाड़ी आपकी स्टेशनरी खड़ी थी, 0 स्पीड में पार्किंग लॉट में खड़ी थी। तो ऐसी खड़ी गाड़ी में यदि कोई क्लेम आता है बाहरी तत्वों की वजह से, तब HDFC अर्गो कंपनी आपके बोनसेस जीरो नहीं करती। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार पूछना चाहूंगा कि ये जो नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर है क्या ये आप सही तरह समझ चुके हैं? यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि कार व्हीकल्स, स्टैटिक व्हीकल्स जी जी जी। बट वो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, ये केसेस में HDFC डज नॉट कंसीडर कि NCV का लाभ मिले करके। सेकंड ये था कि व्हाट अबाउट अदर कंपनीज, कुछ आइडियाज हैं कि ये कंडीशन में हाउ डू दे ट्रेड? जी, मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ HDFC अर्गो का। मान लीजिए मेरे पास किसी और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है जिसमें, आप कृपया माइक म्यूट कर ले। मेरे पास एक माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर मेरे पास किसी और कंपनी की पॉलिसी है और उसमें भी नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर है तो उन केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी पॉलिसी में 25% का नो क्लेम बोनस था, तो वो जो कंपनी है वो मेरे बोनसेस जीरो नहीं करती,
लेकिन आने वाले साल में मुझे 25% डिस्काउंट ही देते हैं। मतलब जो मेरे पिछले साल जब क्लेम आया था तब जितने एनसीबी मेरे पास थे उतने ही एनसीबी उनको नेक्स्ट ईयर देते हैं, यानी उतने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं। एचडीएफसी अर्गो ऐसी कंपनी है जो आपको नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर के तहत नेक्स्ट स्लैब देती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोनसेस किस तरह मिलते हैं, तो पहले साल के आखिर में 20%, फिर 25, 35, 45 एंड 50। तो अगर मेरे 25% बोनस से और मेरे कार में स्टेशनरी चीज खड़ी थी तब डैमेज होता है, तो अगर कोई दूसरी कंपनी है तो वो नेक्स्ट ईयर मुझे 25% ही बोनस देगी, जबकि एचडीएफसी अर्गो आपको 35% बोनस देगी जो नेक्स्ट स्लैब है। आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस। तो रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस, इसमें क्या अंतर होता है। तो जब भी आप कोई गाड़ी शोरूम में खड़ी देखते हैं और उसका एक प्राइस टैग लगा होता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की गाड़ी है, तो इस प्राइस को हम कहते हैं एक्स शोरूम प्राइस। यानी शोरूम में अगर आप वो गाड़ी खरीदेंगे तो वो गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी तो मैं शोरूम में रखने के लिए नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं तो गाड़ी रोड पे चलाने वाला हूँ। तो इस वजह से मुझे उस गाड़ी पर गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना होता है। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मुझे आरटीओ के पास करना होता है, साथ साथ उस गाड़ी का मुझे इंश्योरेंस निकालना जरूरी होता है। तो अगर 10 लाख की गाड़ी है, 10% टैक्स के हिसाब से 1 लाख रुपए मेरा टैक्स में चले गया, 55,000 के करीब करीब मेरा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा और 45,000 के करीब करीब मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी। तो कुल मिलाकर मेरी गाड़ी ऑन रोड आते आते मैंने उसके ऊपर 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। तो अब मैं कहूंगा कि मेरी गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 12 लाख रुपए। लेकिन जब मैं गाड़ी का इंश्योरेंस निकालता हूं तब वो इंश्योरेंस मुझे गाड़ी के एक शोरूम प्राइस पर दिया जाता है। तो एक शोरूम प्राइस थी 10 लाख रुपए, उसमें 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका मतलब है मेरी नई गाड़ी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगी वो 9.5 लाख रुपए की बनेगी। अब मान लीजिए इस तरह की नई गाड़ी अगर पहले साल में या दूसरे साल में चोरी हो जाती है या कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, तो कंपनी को तो पूरा क्लेम देना है उन्हें। तो कंपनी उन्हें कितना क्लेम देगी, आप में से कोई बता सकते हैं? आईडीवी के हिसाब से ही देगी, व्हाटएवर इज द आईडीवी। आईडीवी के हिसाब से बराबर, तो 9.5 लाख रुपए की ही मिलेंगे। तो यदि वो व्यक्ति सेम मेक मॉडल कलर की गाड़ी फिर से खरीदना चाहे तो उन्हें 2.5 लाख रुपए जेब से लगाने पड़ेंगे वापस। तो अगर इस खर्चे से बचना है तो कस्टमर रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर ले सकते हैं अपनी पॉलिसी में। तो रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर हम कार के पहले 3 सालों तक इसका कवरेज देते हैं। मान लीजिए यदि किसी की गाड़ी की चोरी हो जाती है या वो गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है 3 सालों के अंदर अंदर, तब एचडीएफसी अर्गो क्या करेगी, उनका इनवॉइस देखेंगे। तो उनका इनवॉइस जो है वो 12 लाख रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम, इतना क्लेम उन्हें दे देंगे। तो इस केस में गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है वो है 12 लाख माइनस 45,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो उस व्यक्ति को अब 11,55,000 रुपए का क्लेम मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रिटर्न टू इनवॉइस के तहत ये चीजें कवर करते हैं। ये एड ऑन पहले 3 सालों तक ही दिया जा सकता है।
नेक्स्ट जो एड ऑन कवर है वो है इमरजेंसी असिस्टेंस। ये HDFC अर्गो में एक कंपलसरी एड ऑन है। इसका 4 व्हीलर में पहले साल में हम 350 रुपया प्रीमियम लेते हैं। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये प्रीमियम घटा के हम 50 रुपए का कर देते हैं। यदि छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो जाता है तो आप HDFC अर्गो सर्विस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑन द स्पॉट आके आपको वहां पर आपकी मदद करेंगे, जिसे हम रोड साइड असिस्टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कवर है वो है इमरजेंसी असिस्टेंस वाइडर कवर, जिसमें हम गाड़ी की चाबियों का इंश्योरेंस करते हैं। तो यदि किसी वजह से आपकी चाबी खो गई है या कहीं आप रख के भूल गए हैं या किसी ने चोरी कर ली है, तो आप इस गाड़ी की चाबी खोने का एक FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं और अपने डीलर के पास जाकर नई चाबियां बनवा सकते हैं। ये जो नई चाबियां बनाने का जो भी खर्च होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करवा देगी। नेक्स्ट जो एड ऑन है वो है लॉस ऑफ यूज एंड डाउन टाइम। तो यदि एक्सीडेंट की वजह से आपकी गाड़ी गैराज में है, आप अपनी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसे 5 दिनों के लिए, मतलब जिस दिन आपने गाड़ी गैराज में दी है वो दिन काउंट नहीं करेंगे। उसके दूसरे दिन से हर 24 घंटे के लिए कंपनी आपको 500 रुपए का भुगतान करेगी अगले 5 दिनों तक, ताकि आपकी गाड़ी तो गैराज में है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका जो खर्च है वो आपको कहीं ना कहीं यहां से कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो ये थे हमारे एड ऑन कवर्स। अब आइए देखते हैं कि अगर मुझे किसी कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवानी है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले उस गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी पुरानी है। तो इसके लिए अगर आप पोर्टल का उपयोग करेंगे तो वहां पर सारी जानकारी फीडेड होती है। आपको सिर्फ उस गाड़ी के मेक मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग ईयर को डालना होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि गाड़ी कौन से लोकेशन में है और कौन से RTO में रजिस्टर्ड है। तीसरा, गाड़ी कितनी पुरानी है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG है, डेप्रिसिएशन। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा हमें जो एक्स्ट्रा जानकारी लगती है पॉलिसी बनाने में, जैसे गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर, तो ये सारी चीजें गाड़ी के RC बुक में आसानी से मिल जाती है। या अगर आपके कोई कस्टमर है जो उनकी गाड़ी का रिन्यूअल आपके पास करवाना चाहते हैं HDFC अर्गो में, तो आप उन्हें उनकी पुरानी पॉलिसी की कॉपी मांग सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस तरह से ये प्रीमियम कैलकुलेशन किस तरह होता है। तो जैसे मान लीजिए इस गाड़ी का जो IDV है, ग्रॉस व्हीकल वेट यस प्लीज का रहता है जी। जी, कमर्शियल व्हीकल्स में गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो उस गाड़ी के वजन प्लस उसके वजन ढोने की जो कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पर किया जाता है। तो जब हम कहते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट, इसका मतलब होता है कि गाड़ी का अपना वेट प्लस वो कितना वेट ढो सकते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। अच्छा, आप में से किसी को ये पता है कि ये जो ट्रक्स हमारे यहाँ चलते हैं, तो इन ट्रक्स का जो मॉडल नंबर होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हमने काफी कॉमनली एक टाटा का ट्रक देखा होगा 1612 1612। तो ये जो आंकड़े होते हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कोई बता सकते हैं? टन वाइज रहता है गाड़ी। फिर से कहिए। गाड़ी कितने टन ले जा सकती है माल, उसका कैपेसिटी मॉडल नंबर। TBW सर।
GVW करेक्ट। लेकिन कौन से दो आंकड़े, क्योंकि देखिए इसमें तो 4 आंकड़े हैं। तो जब किसी ट्रक का मॉडल नंबर लिखा जाता है जैसे 1612, तो उस 4 अंकों में जो पहले 2 अंक है 16, ये उस गाड़ी का GVW है, यानी ग्रॉस व्हीकल वेट। तो ग्रॉस व्हीकल वेट उस गाड़ी का है 16 टन, और जो बाद वाले 2 आंकड़े हैं 1 2, उसके सामने हम एक 0 लगा देंगे। तो वो 0 लगाने के बाद हमारे पास जो नंबर बनेगा वो होगा 120। तो उस गाड़ी की जो हॉर्स पावर कैपेसिटी है वो है 120 हॉर्स पावर्स। तो मान लीजिए ये जो टाटा की 1612 ट्रक आती है, उसका अपना खुद का वेट अगर 4 टन का है, तो अब वो गाड़ी कितना माल ढो सकती है? देखिए गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है 16 टन, और ट्रक का, खाली ट्रक का अपना वजन है 4 टन। 12 टन, मतलब गाड़ी का अपना खुद का वजन प्लस सामान का वजन 16 टन तक वो गाड़ी ढो सकती है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट जो होती है वो इसी तरह कैलकुलेट की जाती है। आप अगर उस ट्रक का या उस कमर्शियल व्हीकल का आरसी बुक अगर पा सकते हैं या पुरानी कॉपी पा सकते हैं, तो सारे डिटेल्स आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। और जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, तो उनमें हम सिर्फ एक ही एड ऑन कवर देते हैं, और वो है 0 डेप्रिसिएशन। तो ये था हमारा मोटर इंश्योरेंस के बारे में प्रेजेंटेशन। यदि अभी भी आपके पास कोई बैलेंस सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर एक जनरल क्वेश्चन था आपका। एक्चुअली मैं पोर्टल यूज कर रहा था, 2-3 दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है आपके पोर्टल में HDFC के। जी बताइए। जैसे हम मैंडेटरी फील्ड सब फिलअप करते हैं, तो अपना एक शोरूम प्राइस ऑटोमेटिक ले लेता है सिस्टम, बराबर, मेक मॉडल वाइज बराबर। गाड़ी। 2-3 दिन से वो ले नहीं रहा है, एक्चुअली वहीं पे वो अटक जा रहा है, वो एक शोरूम प्राइस ही मांग रहा है। तो अभी मैन्युअली ऑप्शन तो है नहीं हमारे पोर्टल में कि हम उसमें मैन्युअली फिलअप कर दें, तो उसके रिगार्डिंग क्या जी कर नहीं, सकते और वो मैनुअल हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। जो भी आईडीवी होगा वो सिस्टम कैलकुलेटेड ही होता है, और वहां पर हम कस्टमर को एक ऑप्शन ये देते हैं कि वो +10% -10% 15% तक उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। नहीं वो ले नहीं रहा है सर, 2-3 दिन से ना प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत दे रहा है। धीरज जी, ये टेक्निकल एरर है। ये आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे HDFC अर्गो से, नवीन रॉय, तो उन्हें ये क्वेरी आप रेज करके भेजिए आपके ऑफिस की तरफ से, ताकि वो हमारे IT टीम से इसे रिजॉल्व करवा सके। नहीं तो एक काम आप और कर सकते हैं कि उसका जो आपको जहाँ पे IDV नहीं दिख रहा है ना सारे टैब में डिटेल्स डालने के बाद, तो उसका स्क्रीनशॉट आप डायरेक्टली pi.support करके एक आईडी है पोर्टल के लिए स्पेसिफिक, उस पे भी आप भेज सकते हैं। वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में रिवर्ट कर देंगे। नहीं, अगर ये पॉलिसी आप पाई पर बुक कर रहे हैं तो पाई को लिख सकते हैं। यदि आप पाई की इंटीग्रेटेड तरह, क्योंकि सिस्टम और के वो थ्रू जा ना रहे हैं तो उसकी ये जो प्रॉब्लम था ये 1-2 दिन पहले आ ही रहा था, क्योंकि हम लोगों का पोर्टल ही थोड़ा वो था, सर्वर स्लो था, तो ऑलमोस्ट सबको ही आ रहा था ये प्रॉब्लम कि आईडीवी नहीं आ रहा था। आई थिंक अब वो रिजॉल्व हो गया, अब आप करोगे तो आपको आएगा वो। तो आप ट्राई कर सकते हैं अभी। अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। I think Milind very well explained, and so everyone is, I hope, is clear, and बहुत अच्छे से आपने बताया। तो
even I am clear on many things. So, any other question, friends, or we can close this? It was very clear. I hope everyone has been. मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. Yeah, I think it was extremely in a very lucid manner. It was explained. I think he also asked us any questions. So, I think it is a great session. So thank you, Thank you so and much. thank you, friends. And I hope कि सबको इतनी क्लैरिटी आ गई. And आपके थ्रू आया तो I will request everyone to push HDFC ERGO policies. And हम लोग कॉमर्शियल ERGO में वेट्स बहुत अच्छे हैं. कॉमर्शियल ERGO में पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. आई थिंक बाकी व्हीकल्स में भी हम लोग इसको पुश कर सकते हैं. एंड आपको क्लैरिटी आ गई तो आप अपने कस्टमर्स को भी अभी जो एडवाइस देंगे ज़्यादा बेहतर एडवाइस देंगे. एंड हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे समय कस्टमर को ठीक पता नहीं होता है. तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है. जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के साथ खत्म करूँगा. मेरे जानने वाले हूँ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 15 लाख की गाड़ी खरीदी. और नेचुरली जैसे नई कार खरीदते हैं तो होता है कि हम शोरूम से ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं. और इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं लेकिन हम कभी देखते नहीं कि उसमें क्या है. ठीक है, क्या आईडी सेलेक्ट किया है, बाकी क्या फीचर सेलेक्ट किए नहीं किए वो देखते नहीं. हम सिर्फ मोस्ट ऑफ द कस्टमर सिर्फ प्रीमियम पे ध्यान देते हैं कि प्रीमियम कम है ज़्यादा है, क्या बेनिफिट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, उस पर ध्यान नहीं देते. अनफॉर्चुनेटली उनका 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट हुआ कार का जिसमें कार टोटल लॉस में चली गई. जब कार टोटल लॉस में गई तो उनको इंश्योरेंस से जो क्लेम आया वो 12 लाख का आया. वो आए थे मेरे पास समझने के लिए. तो मैंने पूछा कि भाई कितने की इंश्योरेंस कराई थी. तो पता चला आईडीवी 15 लाख की गाड़ी का आईडीवी सिर्फ 12 लाख था. मैंने कहा यार ये तो बहुत मिस्टेक है, तो देखना चाहिए. हमें पता नहीं था, हमने ले लिया. अब जब आईडीवी इंश्योरेंस ही 12 लाख का है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 लाख का क्लेम नहीं दे सकती उसमें. लेकिन अगर नई गाड़ी थी 15 लाख का आईडीवी हो सकता था. उस केस में उनको पूरा 15 लाख मिल जाता और उनको 3 लाख का नुकसान देना पड़ा. इस तरह की गलतियां हो जाती हैं. तो ये आप लोग का काम है कि ये अच्छे तरह से समझें और कस्टमर को सही सलाह दें. कस्टमर को सही सलाह देंगे अपने नॉलेज के साथ, कस्टमर को भी समझ में आता है. अगर कोई सही सलाह देता है तो उसको समझ में आता है कि आपका नॉलेज बेहतर है. और अगर आपका नॉलेज बेहतर है, आप बेहतर तरीके से उसको समझा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो पॉलिसी भी आपको देगा उसको. तो आई होप कि आपका सिस्टम आपको ये काम करने में मदद करेगा. एंड जो भी कस्टमर है उनको जाके आप उनकी पॉलिसी पूरी तरह से देख के उनको पूरा करा दीजिए. So that's all from my side, and thanks Milind once again. It was a great session, very helpful. Yeah. And thank you so much. Let me also thank Naveen once. Naveen, thank you so much for inviting. Yeah, thank you, Milind sir. Thank you, Milind sir, for giving the session. Thank you, Milind, for the session. Yeah, thanks. Thank you, guys. Thank you. You can disconnect. My pleasure. My pleasure.